Welcome to another episode, guys. I am your co-host Nakul. And I'm Ankit. Today's episode is all about school and school nostalgia. That's amazing. And one thing which I have not told you is that our batch is completing 25 years of passing out. Wow. So, and it's been a few days, I think a week now, that we started planning for the 25th year reunion. Nice. So, जब हमारा ये तूने बताया ना कि इस बार स्कूल है, आई थिंक उसके एक दो दिन पहले ही हमारी वो शुरू हो गई थी इसकी प्लानिंग सब Nice. गेट टुगेदर मतलब की. ये सो अब इसको क्या बोले, चांस बोले या कोइंसिडेंस बोले या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले, आई डोंट नो, बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग. एंड आज मैं बिफोर वी स्टार्टेड दिस एपिसोड आई वाज थिंकिंग कि हमारा स्कूल खत्म हो गया था, उसके बाद तो पैदा हुआ है. Let's see. तो I am तो very excited. Oh, so am I. Very excited. मतलब when we were starting the podcast, तो first few topics which I had written down, और मतलब school was like कि okay, this is going to be very exciting. और तब से I have been planning. So you have done your schooling from Rudrapur completely or Delhi also? Yeah, there is a place called Pantnagar. Next to it's a very big agriculture university. I am sure most of people know about Pantnagar. तो Pantnagar में एक स्कूल था, कैंपस स्कूल. I done my schooling from there, first to 12th. Okay. First, I have done two schools. That is, one was a preschool. Preschool is like उस टाइम से भी preschool, हालांकि जब ये कल्चर नहीं था शायद स्मॉल टाउन्स में that time. So this kindergarten culture, I don't know about then, but from what I remember, we used to have nursery, LKG and then UKG. Correct. है ना? Correct. Nursery, LKG, UKG. उससे पहले preschool. अच्छा. Okay. उससे पहले 6 महीने साल पता नहीं, बट आई हैव माई वेग मेमोरीज कि मैं ट्राइसिकल चलाता था उस जगह पे बैठ के, तो वो मुझे याद है. वेगेस्ट ऑफ द मेमोरीज एकदम जैसे होता है ना, क्लाउड्स के बीच में से एक मेमोरी आ रही है, वो वाली है कि मैं वहां पे साइकिल. You don't remember anything about those years, but just one thing you remember, that is that's how it is. So memory loss is for real, guys. So I have done my schooling from Gadarpur, है ना, मतलब throughout. So I have not done nursery. Okay. ऐसे कैसे होता था? नहीं, मम्मी पढ़ाती थी ना घर पे. So I have not done. Homeschooling concept is not new. So I have not done nursery. I started school from LKG, UKG, and then till 12th I was at the same school, Monad Public School. Shout out, best school ever. यार मैंने कैंपस स्कूल का नाम नहीं लिया. मतलब लिया था शायद. Every you mentioned the city. तो मतलब I think every school is the best school for everyone, and absolutely. School days are absolutely the best years of your life for a very long time. I think school days are the most memorable years of your life. Best तो मैं किसी भी past को best नहीं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ present is the best, the personal thought. But I think the moment you pass out of school till the time you live, school memories stay relevant. Because उसका another reason I think कि before we मतलब after we leave school and even in the teen years when we are in school, we start to get very materialistic. We start to look for things मतलब जो हमको फायदा दे रही हैं कुछ, and before that it's all completely random. And that's the beauty of school कि जो भी चल रहा है it's all random. You are actually going with the flow. Yeah. मेरे को लगता है कि वो लेट स्कूलिंग में आते ना खत्म हो जाता है. वी स्टार्ट गेटिंग करप्टेड. दिमाग में गंदगी बननी शुरू हो जाती है लेट इयर्स ऑफ स्कूल में. और मैं वही कह रहा हूँ ना, दोज आर द बेस्ट इयर्स टिल यू गेट मैरिड एंड देन यू गेट रेगुलर एक्शन. बट other than that, एक्शन के लिए शादी की जरूरत नहीं होती दोस्त. we were from small town ना. हाँ, with the longest relationship of 1 year. So school part 1, very excited. So, are we going to have many parts in school series? We'll see. अच्छा, okay. I don't think because school यार 12 साल का स्कूलिंग है तो एक दिन में तो खत्म. Actually 12 plus 3 plus few days of क्या बोलते हैं प्री स्कूलिंग, प्ले स्कूल. तो yeah, it's like quite a long time. And we are also covering tuitions, just FYI. इसी सीरीज में? Yes. ट्यूशन की अलग सीरीज बन सकती है भाई. We'll see. ट्यूशन का तो अलग चैप्टर ही लगे ट्यूशन का तो. Before we start, we have these T-shirts made for this series specifically. Mine is
called Kaksha. It has a teacher teaching few students under the neem? under a tree. And mine is called Hindi Bol. So it's this Kaka is Kaka. Kaka Kaka. से लेके सब तक. तो Do you remember Kaka Kaka? Sad है but नहीं. Don't troll us please. I could never remember. ये could never नहीं, शुरू में तो याद थी I obviously. could never. अच्छा मेरे को ना बहुत prizes मिले हैं in spellings and contests and all those things. अच्छा. I have won a lot in spelling contests. You were like and all. one of those spell bee kids. I am one of those kids who's a perfect example of how a topper gets ruined. So, जब हमने शुरू किया था स्कूल तो भाई इट वाज लाइक अ प्राउड, माय पेरेंट्स वर द प्राउड पेरेंट्स कि भाई मेरे बच्चे का टेस्ट ले लो जिस दिन लेना है टाइप्स. So you were like a topper in the initial years of school. For quite some time. I think till 8th 9th grade. फिर उसके बाद मुझे बोला ना लेटर इयर्स में आके करप्शन आ जाती है दिमाग में. उसके So I'll tell you, when we were shifting from Delhi to Rudrapur and the school was getting changed, so obviously we were prepared for the test कि नए स्कूल में जाना है, and we were like, I was in first grade. I was writing the exam to get admission in first grade. अच्छा तब मतलब you used to have entrance exam for schools? नहीं तो ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं एंट्रेंस टेस्ट था या नहीं था, तो पापा ने अपनी रिसर्च करी कि बेस्ट स्कूल कौन सा एरिया में. पता लगा जी कैंपस स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, पंतनगर. अब घर से कुछ था वो 12-15 किलोमीटर टाइप्स वहां पे, एंड फॉर रुद्रपुर इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस. तो जब कैंपस स्कूल में ये हुआ कि हाँ भी सिलेक्शन के लिए जाना है, तो पापा ने बिना अपॉइंटमेंट लिए, उस टाइम पे कोई फैशन नहीं था ना अपॉइंटमेंट्स का, पापा ने अपनी गाड़ी लेके चले गए वहां पे, हमको बिठा के गाड़ी में. पापा ने बोला प्रिंसिपल साहब को कि दीज आर द रिपोर्ट कार्ड, अंग्रेजी में, वहां पे अंग्रेजी में कम लोग बोलते थे, तो पापा ने बोला दीज आर द रिपोर्ट कार्ड ऑफ माई किड्स and I want them to be admitted in your school. तो आपका भैया दोनों का ही साथ में ना, you guys have moved. पहले सिर्फ मेरी बात हुई, मतलब ऐसे कि चांस की बात. तो ये हम गाड़ी में बैठे, पापा कन्वर्सेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब से जाके. अच्छा मतलब you guys are sitting in the car and uncle is. Papa has gone inside and he's talking to the principal. Story which we have been told and which was actually kind of affirmed by the principal also in the later years. तो So you eventually got admission. I'm telling you how we got admission. Dramatic भाई, ऐसे फिल्मी सीन. तो पापा ने बोला कि ये रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ माय किड्स एंड I would request you to kindly have a look and I think they are worth the admission. ठीक है. तो प्रिंसिपल साहब ने ऐसे रिपोर्ट कार्ड फेंक दिए. I don't believe in लाल काला पीला कार्ड्स. तो आपने बोला my children are sitting in the car. You can take the test right now. That was the confidence. तो अब प्रिंसिपल साहब भी हिल गए कि अच्छा हाउ इज इट पॉसिबल. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एक एक करके करते हैं, आज एक बच्चे का लेंगे. तो बोला ठीक है छोटे वाले का ले लेते हैं. फर्स्ट ग्रेड के लिए आर्गुमेंट हो रही है, ग्रेड 1 दैट टाइम बैक देन द स्कूल वाज एट दैट लेवल एट दैट टाइम. एंड तो मेरे को बुलाया गया, हमारी जो फर्स्ट क्लास टीचर थी मेरे को आज गया था मिसेस कपूर. मिसेस कपूर मेरा टेस्ट ले रही है. मैं टेबल्स लर्न करके गया हूँ फॉर द फर्स्ट ग्रेड 10 तक के. ओके 10 तक के टेबल्स. और मुझसे पूछा 2 का टेबल. फिर मुझे बोला कि आपको बॉल की पिक्चर ड्रॉ करनी है. बॉल की पिक्चर कैसे ड्रॉ करता है कोई. बोला बनाया 3 लाइनें मार दी हो गई. फिर उन्होंने 1-2 सवाल पूछे कि व्हाट इज योर नेम एंड बेसिक्स. तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. स्पेशल नीड स्कूल था क्या? उस टाइम में मेरे पेरेंट्स को यही फीलिंग आई होगी कि यार ये तो स्पेशल नीड है मेरे बच्चों के सामने. सो बाय दैट टाइम वी पास्ड आउट, भाई बाउंड्री लाइन पे पास हुए. तो ये हुआ एक्चुअली 4, 5, 7, 8 साल के बाद पापा गए वापस से. प्लीज गिव मी माय चिल्ड्रन बैक. दीज वर नॉट द चिल्ड्रन आई गेव यू. बट मतलब it is very weird. How can you take a test for some, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए इस उम्र तक पता भी नहीं होता है कि बच्चे मतलब क्या. भाई how do you times decide? have changed. Okay. जिसको पहले रेगुलर चीज मानते थे आई थिंक अब उसको एक प्रेशर मानने लग गए हैं. चांटा फॉर दैट मैटर. तेरी कितनी पिटाई हुई है स्कूल में? मतलब थोड़ी बहुत हुई है. मी एंड ऑल माई फ्रेंड्स द कोर गैंग ऑफ माइन, हम लोग 12वीं तक पिटे हैं. 12वीं में आल्सो गॉट. ठीक है 12th में पिटना ये मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट है अपने आप में. बहुत ही कम लोग होंगे जो 12th तक में पिटे होंगे. 12th तक के टीचर्स भी हाथ नहीं लगाते यार, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हो गई थी कि हम पिटे.
So in 11th class I got beaten like ऐसे anything, और 12th में I got slapped once. 12th में भी एक बार मतलब आई थिंक 9th 10th 11th में तो कुछ नहीं हुआ होगा. 9th में आई थिंक 9th तक में पिटे थे अच्छे से. 10th 11th वाज अ साइलेंट फेज. फिर 12th में आके वो ऐसा एक्चुअली हो गया था, हम लोग ना एक फ्रेंड को बर्थडे बम्प्स दे रहे थे और वो भाग रहा था हमसे आगे आगे बचने के लिए. तो हमने उसको घेर लिया सबने मिलके. तो टीचर्स ने देखा, उनको लगा इनकी तो लड़ाई हो गई है. भाई हमारे जो हट्टे कट्टे टीचर्स थे 3-4 वो आए, उन्होंने धरा हमें और चाट मारना शुरू कर दिया. They didn't know we were like having fun. They thought we were fighting. तो I think मतलब स्कूल में पिटाई तो अब सी नाउ व्हेन आई टेल पीपल माय एज कि हम जब छोटे थे स्कूल में बहुत पिटाई होती, दे आर लाइक मतलब ये हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ कुड दे डू दिस. और आज की डेट में तो इट इज लाइक यू कांट बीट किड्स एट स्कूल. हमारा यूज्ड टू बी अ रूटीन. यू सेड 9th-10th में पिटाई नहीं हुई है. 9th-10th 10th 11th में नहीं हुई. 10th-11th में नहीं हुई है. 2 साल बस बच गए हम टाइप्स, ऐसे हो गया. नहीं तो फिर पिटाई हमारी होती थी फॉर श्योर. मतलब फॉर मी व्हेन आई एंटर्ड 11th क्लास देन आई वाज लाइक कि ओके अब पिटाई नहीं पढ़नी चाहिए, बट उसमें भी पढ़ी. बिफोर दैट इट वाज रूटीन. सो आई मतलब मैं आई विल टेल यू वन स्टोरी. आई थिंक 7th-8th क्लास की बात है. हाँ. अब वो होता था ना पहले कॉन्सेप्ट की कोई चैप्टर पढ़ना है तो टीचर रीड कराता था. हाँ, एक बंदा रीड आउट लाउड करता था. ठीक है, तो ऐसे चलता था. दिस इज वन ऑफ द रीजंस. या फिर रीडिंग के बीच में कोई मतलब वो रीडर को सामने बुला लिया जाता था ब्लैक बोर्ड के पास कि आप यहाँ पर खड़े होकर रीड करो. नाउ एवरीवन हैज टू पे अटेंशन बिकॉज उसके बाद किसी का भी नंबर आ सकता है रीड करने का. तो यू नीड टू नो कहाँ पर रीडिंग चल रही है ना. तो अब एक बारी का मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि कोई रीड कर रहा है एंड देन टीचर हैज आस्क्ड कि स्टॉप. अब टीचर ने खड़ा करा किस एक आध बंदे को, बताओ कहाँ है, नहीं पता, ओके खड़े रहो. दूसरे को पूछा पता करो. ऐसे ऐसे करते करते किसी को नहीं पता था क्लास में. 40 बंदे. आई थिंक अक्सर ऐसा होता था. हाँ वही ना, मल्टीपल टाइम्स किसी को नहीं पता था. लाइन से सब खड़े होंगे. ठीक है, फ्रॉम मतलब ऐसे था ना कि 3 रोज हैं, 3-4 रोज हैं, हर रो में 2-2 3-3 बच्चे, हर रो में 2-2 3-3 बच्चे. सो स्टार्टिंग टिल एंड everyone is standing up and then teacher is मतलब I'll not call those slaps, I'll call them रैप्टे. ठीक है, चांटे. और मतलब उन मैम का ऐसा होता था थप्पड़ कि वो छप जाता था हाथ में. अब मेरे स्कूल के जितने हैं ना सबको पता है मैं कौन सी मैडम की बात कर रहा हूँ. मैम हैट्स ऑफ टू यू. खौफ था यार, खौफ. हम लोग उंगली लगा के रीड करते थे. डस्टर से पिटे हो कभी? बिल्कुल, हाथ पे. अरे फ्लाइंग डस्टर पड़े थे तुम्हें? मिसाइल्स एक आधी बार पड़ा. ये तो हमारे रेगुलर था. तो डस्टर हाथ पे. हमारी बायोलॉजी टीचर होती थी. मैम यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट यू. डस्टर, आयरन स्केल. हाँ, आयरन स्केल वाज देयर. हाँ. तो मतलब आयरन स्केल वाज द अल्टीमेट वेपन. इट मतलब डस्टर आयरन स्केल क्वाइट सिमिलर बट दीज आर लाइक द ब्रह्मास्त्र. कि अब तो डस्टर निकाल लिया मैडम ने, अब तो आयरन स्केल निकाल लिया, अब तो यार तुम टीचर्स की बात कर रहे हो तो मैं तो यही बोलता हूँ कि लाइक मेरे तो फादर ठीक है, अब हमारी ना हैंड राइटिंग वाज लाइक जस्ट टू बैड. Mine was also very bad. Is like लोग मेरी राइटिंग समझ के देख के बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ. हाँ सेम इतनी गंदी राइटिंग है. तो अब पापा और टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं पीटीएम में कि अब टीचर कंप्लेन कर रहे हैं पापा को. Nowadays it's the other way around, but उस टाइम पे कि सर इसकी राइटिंग इतनी गंदी क्यों है. तो पापा क्या बोल रहे हैं, ये तो मुझे याद है सर, आई गिव यू फुल अथॉरिटी, उंगलियां तोड़ दो इनकी लेकिन इनकी हैंडराइटिंग सुधार दो प्लीज. उंगली में वो करते थे ना पेंसिल लगाकर और वेरी पेनफुल. नकल्स में मारते थे. डस्टर नकल्स में भी पड़े हुए हैं यार देखो पढ़ना तो मतलब कुछ बेसिक मतलब आई थिंक वो था ही नहीं. इट वाज नॉट इवन काउंटेड एज अ पनिशमेंट आई वुड से. और कुछ टीचर्स का ना वो तरीका फिक्स रहता था. जैसे जो मैथ्स के टीचर हैं वो कभी थप्पड़ नहीं मारेंगे, वो सर पकड़ के नीचे करेंगे और पीठ पे मारेंगे. हमारे फिजिक्स के सर थे ऐसे. वही मैथ साइंस वाले. और फीमेल टीचर्स वो करती थी, थप्पड़ मारती थी. इंग्लिश वाली टीचर जलील करती थी. इंग्लिश वाली टीचर ऐसी ऐसी गालियां देती थी, इंग्लिश में समझ नहीं आता था क्या बोल रही है. तो जो हमारी एक मैम थी, अगेन ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक नेम्स, जूनियर क्लासेस में ना हमें साइंस पढ़ाती थी. ओके. वो तो
ऐसे पीटती थी हमें। वो जो मेरे चांटा मारने वाले वो भी साइंस की मैम थी। हाँ, तो इनका ना अलग इनका स्टाइल था। अच्छा। ये तो ना जैसे टेबल टेनिस होता है ना, टेबल टेनिस, उसमें हाउ डू यू सर्व, उसमें यू बाउंस द बॉल एंड स्लैप इट, राइट। तो मैम हमारे साथ टेबल टेनिस खेलती थी ऐसे। अब जैसे बच्चे सर झुका के खड़े, जब डांट पड़ रही है, तो अब डांट पड़ते पड़ते उनको सडनली होता था कि इसकी गर्दन उठाओ। ये ऐसे नहीं मारना, पढ़ना चाहिए भाई साहब ढंग से, तब तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। वाओ, सो क्रिएटिव। इनोवेटिव, क्रिएटिव। और मतलब स्केल गर्दन पे पड़े हैं कभी? गर्दन पे स्केल नहीं पड़े यार। गर्दन पे स्केल पड़ते थे। मतलब मैं वो कह रहा हूँ ना, टीचर यूज्ड टू बी सो ब्रूटल एट द टाइम। हाँ हाँ। एक वो लकड़ी वाला डंडा आता था, वो जो संटी डंडा, जो झंडे में नहीं हम डंडा लगाते, उससे भी मार पड़ती थी यार। उससे भी गंदी तरह पड़ती थी। संटी, संटी पता है ना क्या होता है? पतली सी छड़ी, एकदम पतली सी, जो पौधों में से निकलती है। ओके, राइट 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 राइट। गीली गीली भाई, फ्रेश निकालते थे भाई साहब रोज। हमारे एक थे, उनको तुमने निकनेम भी दे रखा था, एक बड़ा गंदा सा। तो वो भाई साहब फ्रेश निकालते थे रोज। और जब पड़ती थी ना, आई एम नॉट किडिंग ना, अगर आपने पीछे पड़ रही है और अपने हाथ ऐसे रख लिया तो यहाँ पे सूज जाएगा यहाँ, और अगर नहीं रखा तो पिछवाड़ा सूज जाएगा। और वो डंडी, वो डांडिया वाली डंडी, लकड़ी वाली सिमिलर, जो मिल जाता था, जो इनके पास होते थे भाई हथियार। इनका तो बस चलता था कि शायद केमिस्ट्री लैब में जाके बम भी निकाल के ले आए बच्चों को फोड़ने के लिए। बट हम लोग डिजर्व करते थे यार पिटना। बच्चे आजकल भी डिजर्व करते हैं, मुझे लगता है बच्चे हर जगह डिजर्व करते हैं। बट आजकल आई थिंक टीचर्स नाउ हैव बिकम हेल्पलेस, मजबूर नहीं हो कर गए सकते बेचारे। मतलब। हाँ, आई थिंक इट्स ओनली फेयर राइट नाउ। पर हम लोग तो डेफिनेटली डिजर्व करते थे। मैं आई कांट इमेजिन। हाँ यार, एक्चुअली जो कांड हमने किए है ना भाई, वो एक्चुअली में डिजर्विंग थे। हम अगर नहीं पिटते तो शायद स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती। एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना बड़ा सा वो होता था, इट यूज्ड टू बी रिंग, मेटल रिंग, जिसको घंटी बोलते थे, घंटी बजाने के लिए। तो मतलब वो जो बड़ी सी बेल या फिर? हाँ, बड़ी बेल नहीं, नॉट अ प्रॉपर टाइप बेल, सर्कल वाला, और वो पीतल वेतल का होता था, ठीक है। तो हम छोटे थे उस टाइम पे, तो किसी सीनियर क्लास की गेम्स पीरियड चल रहा था और उन्होंने जाके वो बेल निकाल के छुपा दी। इतनी बड़ी बेल? हाँ, उतारी, और अच्छा, 4-5 बड़े बड़े लौंडे आए होंगे हट्टे कट्टे, उन्होंने छुपा दी। अब पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा, गेम्स पीरियड, क्योंकि बेल ही नहीं बज रही। और हम पढ़े जा रहे हैं, हमारा पीरियड नहीं खत्म हो रहा है, घंटी नहीं बज रही है, पढ़ाई हो नहीं है। दिस इज सो नाइस। मतलब जब बाहर खेलने जा रहे हो, गेम्स पीरियड खेलने जा रहे हो एक्चुअली, तो छुपाना इज मोर अप्रोप्रिएट। जो जिसने छुपाया होगा उसका गेम्स पीरियड शुरू हुआ होगा ना, मे बी छुपा दी भाई लोग। यार हम लोग मतलब ऑब्वियसली क्लास में तो हरकतें काटते ही थे, बट जो कुछ इंसिडेंट्स असेंबली के टाइम जो हम करते थे, स्कूल असेंबली के टाइम, वॉज दिवाली के आसपास। तो पटाखे लेकर आते थे छुपा के। अब छुपा के भी कैसे क्योंकि जैसी दिवाली स्टार्ट हो रही है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि खुराबादी बच्चे पटाखे लेकर आएंगे। सो हमारे बस से उतरते ही चेकिंग स्टार्ट हो जाती थी। अब उसको स्नीक इन करने के लिए कुछ तरीके होते थे कि छोटे बच्चों के बैग में डाल दिए, छोटे बच्चों की चेकिंग नहीं होगी, एंड देन टिफिन बॉक्स में डाल दिया। ओके, सो आई हैड वन फ्रेंड। सॉरी, बट कहाँ डाल के ले जाते थे ना? बता रहा हूँ। आई हैड वन फ्रेंड, वो ना उसने फूक वाले बम अपने अंडरवियर में छुपा रखे थे। सो ब्रो हैड मेनी बॉल्स ऑन दैट डे। तो मैं ओनली फूक वाले, हम तो गोला बम भी ले आते थे, जो हरे वाला बम होता था, बुलेट बम, गोला बम, आलू बम। मतलब और चेकिंग में पकड़ा गया वो। मतलब कैन यू इमेजिन वो कैसे पकड़ा होगा यार। तो बम स्नीक इन करते थे, और ये लोग क्या करते थे, स्नीक इन हो गए जैसे तैसे करके। असेंबली चल रही है, एंड जनरली होता है ना कि असेंबली में वो होता है जब नेशनल एंथम एंड में होता है, सो दे यूज टू प्लान कि धमाका होगा, ऑब्वियसली बम है तो धमाका होगा नेशनल एंथम में, क्योंकि तब लोग सब खड़े हुए हैं, सो नो वन कैन। और 21 तोपों की सलामी तो बनती है। तो ये लोग क्या करते थे, वॉशरूम में जाते थे, बम लगाते थे, और वो होती थी ना मोर्टीन कॉइल। अच्छा,
तो उसके वो मतलब छोटी सी कॉइल लेकर मतलब डिसाइड करके कि अच्छा हमको असेंबली नेशनल एंथम इस टाइम पे होगा तो इस टाइम फटना चाहिए, उस हिसाब से उसकी साइज डिसाइड होता था कॉइल का। वहाँ पर उसकी बत्ती बना के एंड पे रखते थे कॉइल के। करेक्ट, नेशनल एंथम पर बम फटता था यार। करेक्ट, मतलब यू कांट इवन गिव अ रिएक्शन। जनरेशन ना सुधरती रहती है, ठीक है, तो आगे के बच्चे काफी सुधर गए विद एवरी पासिंग एज। आई थिंक जनरेशन सुधर रही है। तुम लोग मॉर्टिन कॉइल लगाते थे, हम सिगरेट लगाते थे। और सिगरेट का आइडिया दिया किसने? पापा ने। एक व्हील्स की सिगरेट चलती है 19 मिनट में। अब एक अगरबत्ती का भी ऑप्शन होता है, बट अगरबत्ती से खुशबू इतनी आई थी कि कोई भी निकले आसपास तो। और वही मतलब एक्चुअली उसको अच्छा, तुम लोग की सॉरी तुम लोग की स्कूल बसेस थी? ओके, आई विल कम ऑन द स्कूल ट्रांसपोर्ट आफ्टर दिस, यू जस्ट कंटिन्यू। मतलब वो बम को ऐसे लगा के रखते थे, कोई वॉशरूम जा रहा है तो उसको पता भी ना चले, मतलब ऐसे लॉक करके आ जाते थे बाहर से, और या तो उसको फ्लश नहीं करा कि कोई देख के वहां बैठे ही ना, है ना, जस्ट इन केस, क्योंकि पीछे बम लगा रखा है। तो मतलब इतनी सो मच प्लानिंग यूज टू गो इनटू ऑल दिस, तो डिजर्व करते थे यार हम पिटना। एक्चुअली में ये तो आई एग्री विद यू कि हम डिजर्व करते थे पिटना, और हम तो ज्यादा करते थे क्योंकि हम लोग प्रीफेक्ट्स होते थे। क्या होते थे? प्रीफेक्ट्स, जो बेसिकली पीपल हु आर ऑन ड्यूटी, हेड बॉय टाइप्स। अच्छा, मतलब द एलीट लॉट, हम तो उसमें आते थे। और हम ही जाके ये इंस्टॉलेशन करते थे, बॉम्ब इम्प्लांट करते थे। तो बम फटा और भाग के भी हमें गए किसने लगाया देखने के लिए। फिर सूंघ भी, उंगलियां भी हमें सूंघ रहे हैं लोगों की कि भाई इसमें बत्ती की स्मेल होगी शायद, वो भी हमें कर रहे हैं। सो आई वाज मतलब अगेन 9th 10th, starting 9th 10th, माई ग्रुप ऑफ स्कूल, माई ग्रुप इन स्कूल वाज लाइक, मतलब ऐसे जो हर पीरियड हर क्लास में बाहर रहते थे। अच्छा, फ्रॉम माई क्लास। बट तो टॉपर था ना, लेकिन वही सुनो ना। हाँ, बट 11th क्लास एवरीवन ब्लडी टुक साइंस, है ना, एंड देन ऑल माय फ्रेंड्स टुक साइंस, ठीक है। इफ एनीवन आउट ऑफ देम वर केपेबल टू बी इन साइंस, दैट वाज मी, बट आई वाज लाइक कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, लेट्स नॉट डू दिस। तो कॉमर्स ली, वो सब ने साइंस। तूने कॉमर्स लिया है? यस, ओके। एवरीवन टुक साइंस। उसके बाद दोस्त थे नहीं, तो टीचर्स बदल जाते हैं। कॉमर्स टीचर्स डोंट नो यू, 10th क्लास के टीचर्स वर डिफरेंट। तो अब क्लास में जितने बच्चे थे, दे वर नॉट वेरी एक्टिव इन ये वो, मतलब आई वाज ऑलवेज एक्टिव। 10th में मार्क्स तो अच्छे ही आए थे। तो अब मेरा परसेप्शन जो बन गया था कि ओके ये लड़का पढ़ने वाला है, क्योंकि बकचोदी करने के लिए दोस्त नहीं थे। वन फाइन डे आई टुक अ लीव फ्रॉम स्कूल, ठीक है, आई डोंट नो तबीयत खराब थी या क्या था। नेक्स्ट डे आई कम, I have been named a deputy discipline in charge of the school. Wow. I was like, what have you guys done? This is your own destruction you have started. वो कहते हैं ना, चोर कोई थानेदार बना दो तो शहर में चोरियां कम हो जाएंगी। Then I was deputy head boy in 12th class also. हाँ, तब तो काम वाम करा था, बट बकचोदी भी करी तो थी। मैं हमारे स्कूल में ना हाउसेज होते थे। हाँ, हमारे भी हाउसेस होते थे, राइट। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। हमारे वर नेम आफ्टर रिवर्स, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। अच्छा, हमारे पे कलर्स थे। तो आई वाज अबाउट टू बिकम द ऑरेंज हाउस कैप्टन। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड। और उससे पहले हमने किसी लौंडे की पिटाई कर दी थी। सस्पेंड होते थे बच्चे। हमारी इंग्लिश टीचर एंड आवर क्लास टीचर, मतलब जिनकी जो टीचर की अटमोस्ट रिस्पेक्ट होती है ना, वो उनकी थी। तो उन्होंने बोला, अंकित, हाउ डू आई फाइट फॉर यू नाउ? आई एम सेविंग यू फ्रॉम सस्पेंशन। एक्चुअली अब वही था ना कि मतलब व्हेन यू आर लाइक यू सेड प्रीफेक्ट्स, हाँ, तो अब टीचर्स भी आपको ऐसे वो नहीं करते हैं, दे गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट समटाइम्स। तो उसकी एडवांटेज लेकर भी हम बहुत वो करते थे कि टीचर हमको तो कुछ बोलेगा नहीं, एंड देन वी यूज्ड टू डू एज मच बैड थिंग्स एज अदर्स एज पॉसिबल। ट्रू। तो हाँ, यू आर राइट, बायस तो मिलता था भाई, डेफिनेटली देयर वाज एब्सोल्युटली अ बायस व्हेन यू वर एट यू हैड सर्टेन इमेज, यू हैड बिल्ट इट अप, रेपुटेशन बना रखी है, और आपने कोई हरकत करती तो एक दो बारी आपको लेवरेज मिल जाती मिलना है। भी चाहिए। दैट्स व्हाई वी डिडंट गेट सस्पेंडेड ना। वो जब हाउस कैप्टन नहीं बने थे अलग बात थी, बट सस्पेंड नहीं हुए थे। हाउएवर देयर वर फ्यू टीचर्स, एक या दो इंसिडेंट को भी शेयर करूंगा मैं, जिनका
कोई बायसनेस नहीं था. We also had one, मतलब हमारे स्कूल के डायरेक्टर was also like अच्छा. unbiased हाँ. completely. And this gentleman was a very senior teacher. Very very senior teacher. I think ये he would be one of the oldest teachers. और इनको शायद फिजिक्स पढ़ाते थे हमें. और ये हमारे स्कूल में रहते रहते ही रिटायर हो गए थे ये. लेकिन हमने इनसे फिर ट्यूशन लगा ली थी लास्ट के 2-3 महीने. अच्छा. हाँ. तो अब इनकी जो क्लास चलती थी ना, तो इनका ऐसा था कि ही यूज्ड टू बी वेरी सीरियस अबाउट टीचिंग एंड रीडिंग एंड स्टडीइंग एंड पैशनेट अबाउट फिजिक्स. और इनसे पढ़ना वाज अ ब्लेसिंग अपने आप में. अगर इनकी बात आपको समझ में आ गई, जो कि हमारे को अक्सर नहीं आती थी, अगर इनकी समझ में आ गई तो आप तर गए. तो ये वो तो नहीं था कि जो दोनों हाथ से लिखते थे ब्लैक बोर्ड यार ये अगर मैं एज्यूम करूँ ना तो वो ऐसे निकल के आ जाएंगे, हो सकता है हो जाए ऐसे. तो भाई साहब अब इनकी क्लास में जब अब 11th में हम नए नए आए थे, इनसे पढ़ रहे थे, हमें रियलाइज हो गया कि इनकी बातें समझ में तो आनी नहीं है. और 10th के बाद 11th में जब आप आते हो तो यू हैव दैट माइंडसेट ऑफ freedom, certain freedom. You are the senior of the school now. Senior of the school and you get some certain freedom. बोर्ड नहीं है, थोड़ा रिलीफ है दिमाग में, and वो सब होता था. तो हमारा नया नया शुरू हुआ मास बंक्स. और वो भी किक होती है somehow. टीचर पढ़ा रहे हैं और आप पीछे से एक एक करके निकल जाओ. अच्छा, पढ़ाते ही वाओ. टीचर ने इधर मोड़ा, एक बंदा पीछे से गायब. तो पीछे वाले दरवाजे से पिछले दरवाजे की भी एक और स्टोरी है, मैं बाद में बताता हूँ इनके बाद. तो अब सर पढ़ा रहे हैं, पीछे मुड़े कुछ लिखने के लिए, एक बंदा गायब पीछे दरवाजे से. अब एक दिस डे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इनका पीरियड था लास्ट 8th पीरियड वाज हिज. तो मतलब अगर निकल गए तो अब निकल ही गए. इस कोने में एक फ्रेंड बैठा है, इस कोने में दरवाजा है. तो इसका एक ब्लू कलर का ना झोला टाइप सैचल टाइप का बैग होता था. अच्छा. अच्छा, तो बैग लेके निकल रहा है. अच्छा, लास्ट पीरियड है. ओके. तो इसने अपना सैचल फेंका. अब सर ने मुड़ा, सैचल देखा इनको उड़ता हुआ और इन्होंने इग्नोर कर दिया. एक करके लौंडे निकल रहे पीछे से. हाँ. एक आधी लड़की भी जो बदमाश टाइप हमारे टाइप की थी वो भी निकल गई. हाँ. एक आधी, ज्यादा नहीं. हाँ. एक आधी. अब सर को और किसी से मतलब नहीं है. हाँ. सर लास्ट में कहते हैं, अरे वो झोले वाला कहाँ गया. अच्छा, मतलब इतने सारे लोग निकल चुके. उनको कोई मतलब झोला दिखा उनको, और झोला रिमेम्बर उनको, ही कुड रिमेम्बर द झोला, और झोले वाला कहाँ गया कर दिया उन्होंने. ठीक है. दिस इज वन डे. अनदर डे, अब टीचर्स के साथ प्रैंक भी हम करते रहते थे. बिल्कुल यार. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि टीचर सर पढ़ा रहे हैं, अब हम ना थोड़े नॉटी होते जा रहे थे, हमारी ऑडेसिटी बढ़ती जा रही थी. तो चौक मार दिया. हाँ, चौक मार दिया, पेपर रॉकेट मार दिया, वो सब कर दिया. अब भाई साहब शोर वोर कर दिया, कुछ भी कर दिया. एक दिन चौक मारी और चौक लगी. सर ऐसे हुए और चौक आई ऐसे. अच्छा, मतलब उन्होंने यहाँ सर पढ़ा रहे हैं. हाँ. चौक आई, वहां से निकली होगी बाद में. सर मुड़े तो चौक ऐसे आ रही है ऊपर से. अच्छा. और उनके आसपास आके कहीं गिरी. अच्छा, उनको लगी नहीं, आसपास आके गिर गई. साहब, और ये सर थे ना हमारे, ये बहुत ही, इनका हाथ इतना भारी था ना, ये पता था, ये अंकुर भैया के टाइम से हमें पता था कि ये सर पीटते बहुत बुरी तरह से हैं. इनका हाथ नोन था कि अगर मामा जी से, उनको मामा जी बोलते थे, अगर मामा जी से पड़ गया ना तो मतलब आप चू हो जाएगी आपकी. भाई साहब सर ब्लैक बोर्ड से आए, सीधा उस लौंडे पे पहुंचे और धैड़ मारा उसको. तो उन्होंने देख लिया था. नहीं, तो लौंडा भी रिटेलिएट किया. सर मुझे क्यों मार रहे हो? अच्छा. व्हाई यू बीटिंग मी? सर बोलते हैं, बिकॉज यू थ्रू चॉक ऑन मी. Sir, it wasn't me. It was you. Sir, no, it wasn't me. I know it was you. Sir, how do you know? You were not even looking. Because it was a parabola. The chalk was following the trajectory. And it was you. What? एक सेकंड, उसी ने मारी थी चौक? उसी ने मारी थी. It found the trajectory. मतलब सर ने, उन्होंने देख ली चौक आते हुए, चौक आ रही है. उनकी जो विजन रही होगी ना, वही रहेगी, चौक यहाँ से यहाँ आई है. लाइक लास्ट 5-10%. हाँ. ऑफ द. हाँ. He calculated 50 बच्चे बैठे क्लास में, 50 से ज्यादा बच्चे बैठे क्लास में. और जिस एरिया से आया होगा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा था, क्योंकि हम लोग भी सेफ्टी लेके चलते थे कि 5-6 लौंडे इकट्ठे बैठेंगे, वही उनमें से एक मारेगा. भाई कुछ नहीं, सीधे आए, चट. It formed a trajectory. And it was him. It was him. ओ भाई साहब. एंड एक्चुअली भगवान को फिजिक्स इन्होंने ही पढ़ाई है भाई. ओह शिट. मतलब
I can't. ये तो गया इनका फिजिक्स की, ये तो गई इनकी फिजिक्स की बात. अब बायसनेस पे आता हूँ. सेम सिचुएशन. हाँ. अब सर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे हल्ला कर रहे हैं. हाँ. उसमें कुछ लड़कियां भी हल्ला कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नॉटी नॉटी चल रहा है. तो अब ऐसे एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जनरल बीसी, नथिंग, ऐसा कुछ उनका सीन नहीं था, नॉर्मल बीसी. तो सर आए और लड़के को वहां पे 2 मिनट उन्होंने कन्वर्सेशन करी और लड़के को चांटा मारा खींच के. और लड़की को बोला तुम लड़की हो इसलिए बच गई हो, अगली बार नहीं बचोगी. अगले वापस मुड़े, फिर आए, बच कैसे गई डैड. लड़की को भी मार दिया. ओहो. तो भाई कोई बायसनेस नहीं है भगवान के घर में, सब बराबर है. भाई ये टीचर तो ओके, आई एम ठीक है, बायसनेस इज फाइन, आई एम स्टिल नॉट ओवर दैट ट्रेजेक्टरी पार्ट. ओके यार, आई एम स्टिल नॉट ओवर. 25-30 साल 25-26 साल हो गए उस चीज को पढ़े हुए आज. लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. यस, आस्क द क्वेश्चन. दिस इज द ब्लैक बोर्ड. दिस इज द ब्लैक बोर्ड. यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग यहाँ कहीं बैठे हुए. यहाँ कहीं बैठे हुए. जनरली कंसंट्रेशन बीच में ही है, क्योंकि वहां से हमें पता है कि हमने आज उधम काटना है. मतलब वो जो हरामी बच्चे हैं वो उस वहां पर मतलब हम ठीक है. तो अस तो सर खड़े हुए हैं. हाँ, चौक फेंक चुके हो, चौक फेंक चुके हैं, इधर मुंह करा है. हाँ. और जैसे एक होता है ना, जैसे एक पहले हाइट लेती है, एलिवेशन लेती है, फिर टॉप पे पहुंचती है, फिर नीचे ऐसे ऐसे फेंक के मारी होगी ना वो ऐसे. जो इतना पोर्शन होगा ना लास्ट में हाइट लेने के भी आई थिंक कुछ मिली सेकेंड बाद वो मुड़े होंगे. उन्होंने सिर्फ इतना देखा होगा, इतना. So when he turned this side, chalk was here. वहां से फेंकी हुई. हाँ. And he calculated it, and he hit the right boy. And the boy retaliated. क्योंकि he was very confident कि ये तो चांस ही नहीं है कि ये पकड़ ले. सर आप कैसे बोल सकते कि मैंने मारा है? You were not even looking here. भाई अब 11वीं 12वीं में ना लड़कों की थोड़ी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है बच्चों टीचर से बात करने के लिए ना, that you get a spunk कहते हैं ना. तो भाई सर ने बोला it formed a trajectory. एक्चुअली वो एक जो मीम है ना जिसमें आई डोंट नो आपने देखा है नहीं, मुझे बिल्ली कूदती है. नहीं sir. Oh god, this is the best story I've ever heard. This is the best story I've seen. Nice. I think good end to part 1. Okay, wonderful. Chalo, we'll continue rest in part 2. Continue in rest. You mentioned school buses. We'll start from there. Till then, good talk guys.